Good morning, friends. Today we are going to start with a new chapter, new act, that is an Indian Partnership Act in 1932. Initially we have completed with Indian Contract Act 1872, Sale of Goods Act 1930, and now the Partnership Act 1932. Partnership Act, similar to the Sale of Goods Act, was also a part of Indian Contract Act. जैसा Sale of Goods Act को 1930 में गवर्नमेंट फेल्ट दैट के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफी बल्की हो गया है, तो दे हैव सेपरेटेड द प्रोविजन रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड मेड अ सेपरेट एक्ट इन 1930. It came into force on 1st July 1930. In the same manner, the Indian Partnership Act was separated from the Indian Contract Act in 1932. It came into force on 1st October 1932. So, the basic provisions of Indian Contract Act are equally applicable to the Partnership Act also. जो प्रोविजंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है वो सभी प्रोविजंस पार्टनरशिप एक्ट को भी एप्लीकेबल है, लेकिन जहां पे कोई प्रोविजंस जो पार्टनरशिप एक्ट को लगाए ना जा सकते वहां पे अप्लाई नहीं हो सकते, तो वहां पे प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट आर एप्लीकेबल. सो विद दिस विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर एंड सी टू इट व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. On your screen you can refer that. The law of partnership is contained in the Indian Partnership Act 1932, which came into force on 1st October 1932. Indian Partnership Act came in force in 1872, 1st September 1872. Sale of Goods Act applicable from 1st July 1930 and Partnership Act is applicable from 1st October 1932. Except Section 69. Section 69 is as regards to registration of the partnership. We'll see the details of registration and unregistered partnership. In India, both the partnerships are allowed, but if the partnership is not registered, then there are certain disadvantages which indirectly force that partnership to go for a registration. Registration is nothing but कि एक पर्टिकुलर अथॉरिटी होती है जहां पे आपको आपके पार्टनरशिप का डिटेल देके उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, यहाँ पे यानी उसको एनरोल करवाना पड़ता है. तो दैट institution is called as a ROF, Registrar of Firms. So Section 69 deals with registration of partnership firm, which came in force after 1 year, that is on 1st October 1933. तो पार्टनरशिप एक्ट कब से अप्लाई हुआ है इंडिया के अंदर? 1st October 1932. इसीलिए इस एक्ट को नाम दिया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. What it further says, since the partnership comes into existence only by the contract between the parties for the purpose, the provision of Indian Contract Act continue to apply to the partnership firm also. That means मैंने already बताया है आपको कि ये एक्ट की पैदाइश इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही हुई है, इसीलिए सभी प्रोविजंस जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अप्लाई होते, all those provisions are equally applicable to partnership also. However, what it says, except when they are inconsistent with the express provision of Partnership Act. यानी अगर कोई प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्टनरशिप को अप्लाई नहीं हो सकता है, यानी वहां पे वो इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं है, यानी वहां पे कुछ डिफरेंस है, तो उस वक्त
all the provisions of Partnership Act 1932 will be applied. तो जनरल रूल क्या है कि the provisions of Indian Contract Act are applicable to the partnership firm. However, those provisions of the Indian Contract Act which cannot be applied, which are inconsistent, in that circumstances the provision of Partnership Act will be applied. Further, the definition of partnership. Now, definition of partnership is very important, because on the basis of definition it will be decided whether the transaction which was carried out by certain people are in the nature of partnership or not. We'll see to it what is the definition, what it says. Definition, section 4 of the Partnership Act define partnership in the following terms. So which section defines partnership? Is section 4. What it says? Partnership is the relation between the person who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all. Now, what is the definition? This definition you will have to learn by heart. Partnership is the relation between the persons. That means it is an association of two or more than two persons who have agreed. That means there is an agreement between the partners. There is an agreement between those people, two persons or more than two persons. What is an agreement? To share the profit. जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करेंगे. अगर शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड नहीं है तो इक्वली शेयर करेंगे, और अगर शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड है तो इन दैट रेशियो द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर्स. शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज बिजनेस. It should not be something else. It should not be like you have given a property on rent and you are deriving a rent from that property and you are sharing that income, rental income. That is also a sharing of income, but there is not a business, so it cannot be called as a partnership. So what is important? To share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. That means either all the partners may be working, or some of them may be working, or one of them may be working, and his act will bind the firm. वो जो भी काम करेगा उसकी एक्टिविटी के लिए सभी पार्टनर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल, विल बी जिम्मेदार. वो जो भी काम करेगा, एक पार्टनर करता है, एक से ज्यादा पार्टनर करते, तो जितने भी पार्टनर्स है वो सभी उस पार्टनर की एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार रहेंगे. तो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप अकाउंट्स में आप लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है. वहां पे यू हैव सीन दैट कि हाउ द प्रॉफिट शेयरिंग इज डन. देयर इज अ रेशियो डिसाइडेड and accordingly the profit is shared among the partners, and if there is a loss is also shared among the partners in the same ratio, unless and until if the different ratio for loss is given. So in the same manner यहाँ पे we are going to read and understand के what are the different provisions of the Partnership Act which are applicable to the partners. तो first important part is a definition part. इस डेफिनेशन में पूरे पार्टनरशिप की कायनात कवर की गई है. अगर ये डेफिनेशन में से एक भी चीज मिसिंग है तो देन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और ट्रांजैक्शन कैरिड ऑन बाय दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप. तो वी विल एनालाइज दिस डेफिनेशन, वी विल एनालाइज विद द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. व्हाट इज द फर्स्ट वन? इट सेज पार्टनरशिप is an association of two or more persons. What is the first and foremost important part of partnership is कि यहाँ पे कम से कम दो लोग चाहिए. एक अकेला बंदा खुद के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता है. इन द सेम मैनर जो अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वी हैव सीन कि whenever there is a contract, that particular contract will be between two parties, minimum two parties. सेल ऑफ गुड्स में भी देखा कि एक बायर होना चाहिए और एक सेलर होना चाहिए. पार्टनरशिप एक्ट में भी क्या बोल रहा है कि कम से कम दो लोग चाहिए,
2 से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि इट विल ऑलवेज अराइज फ्रॉम एन कॉन्ट्रैक्ट दैट इज एन एग्रीमेंट। इट विल नेवर अराइज फ्रॉम ए स्टेटस। जैसे कि माय फादर इज अ हिंदू और मैं अगर उनकी फैमिली में बॉर्न होता हूं तो बाय बर्थ आई एम ऑल्सो हिंदू, unless and until later on if I change my religion. So this is called as by status. That means I don't have to say to you कि मेरे यहाँ पे क्या बोला जाएगा as per status, यानी मेरे फादर का ये स्टेटस था तो ऑटोमेटिकली मेरा भी यही स्टेटस रहेगा। अगर मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बॉर्न हुआ तो बाय बर्थ बाय स्टेटस आई विल बी कॉल्ड एज एन हिंदू। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप स्टेटस से क्रिएट नहीं होंगी। इन द सेंस कि अगर मेरे फादर एक XYZ पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है तो उनके जाने के बाद मैं ऑटोमेटिकली उस पार्टनरशिप में पार्टनर बन जाऊंगा, ये हो नहीं सकता है, बिकॉज इट विल बी लाइक बाय स्टेटस। तो बाय स्टेटस से पार्टनरशिप क्रिएट नहीं होती है। पार्टनरशिप इज ऑलवेज क्रिएटेड फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इज एन एग्रीमेंट। यानी अगर आप और मैं मिलके एक पार्टनरशिप बनाना चाहते तो दैट पार्टनरशिप हैज टू बी क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट में बी आइदर ओरल कॉन्ट्रैक्ट और मे बी इन राइटिंग। तो इवन अ पार्टनरशिप कैन बी एन ओरल पार्टनरशिप वेयर यू एंड मी डिसाइडेड टू कैरी ऑन सर्टेन बिजनेस एंड वी हैव डिसाइडेड दैट कि इस बिजनेस में जो भी नफा नुकसान होगा वो अपन आपस में शेयर करेंगे 50-50। तो दिस कैन बी कॉल्ड एज एन पार्टनरशिप क्रिएटेड बाय ओरल एग्रीमेंट और ओरल कॉन्ट्रैक्ट। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप इज देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। फर्स्ट फीचर इज देयर शुड बी मिनिमम 2 पर्सन। सेकेंड वन, those minimum 2 person or more than 2 person should create an agreement, should create a contract. Then third important feature of the partnership is business. वहां पे बिजनेस होना जरूरी है। Business, you are aware with what is a business. That business can be a trading business. The trading business can be a retail business, can be a wholesale business, can be a franchisee, can be a super stockist, can be anything, or it can be a vocation or profession. Just as के चार्टर्ड अकाउंटेंट, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलके, 2 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलके अपना प्रोफेशन चलाते, और वहां पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बिजनेस करना या प्रोफेशन कैरी ऑन करना इज एन ऑब्जेक्टिव। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि पहला इंपॉर्टेंट फीचर है 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए, उन लोगों के बीच में एग्रीमेंट चाहिए। एग्रीमेंट किस चीज का चाहिए, तो बिजनेस कैरी ऑन करने का एग्रीमेंट चाहिए। दे शुड कैरी ऑन द बिजनेस। व्हाट शुड बी द पर्पज ऑफ द बिजनेस इज टू शेयर द प्रॉफिट। लॉसेस is incidental to the business. Whenever there will be an agreement, that agreement will always be for a profit sharing. They are not going to create an agreement which will say that कि आप और मैं X, Y will create a partnership. They will carry on this particular business for the purpose of sharing a loss. तो लॉस का आप एग्रीमेंट नहीं बनाते हो। एग्रीमेंट यू आर ऑलवेज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर अ प्रॉफिट। लॉस तो इंसिडेंटल है, इंसिडेंटल है यानी इट मे और मे नॉट हैपन। ऐसा बोल ही नहीं सकते कि आप हमेशा प्रॉफिट होगा। अगर कुछ अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस अराइज हो जाए, कॉन्टिजेंसी अराइज हो जाए, जैसे कि ये सर्कमस्टेंसेस में, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट यू मे इनकर अ लॉस, but you will never create an agreement that will define that you are creating a business, partnership business, for the purpose of sharing a losses, because you will always create a partnership agreement for carrying on the business with a positive mind. You are never going to create a partnership agreement for carrying on the business with a negative mind. आप business क्यों कर रहे हो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रॉफिट शेयर करना। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। एंड लास्ट
objective is may be carried on by all or any one of them acting for all, that is called as a mutual agency. Mutual agency is a cardinal principle of partnership. It is a most important principle. Acting for all, what it says, business may be carried on by all or any one of them acting for all. That means या तो सभी पार्टनर्स एक्टिंग पार्टनर्स होंगे, एक्टिव पार्टनर्स होंगे, या फिर कुछ पार्टनर्स एक्टिव होंगे, कुछ डोरमेंट होंगे, लेकिन हर एक पार्टनर की हर एक एक्टिविटी जो बिजनेस उस पार्टनरशिप से रिलेटेड है, उस एक्टिविटी के लिए बाकी सभी पार्टनर्स जिम्मेदार रहेंगे. दैट मीन्स पार्टनरशिप विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी. That means if I am acting, I am an agent and you are a principal. However, both of us are a partner in a partnership firm. But when I am acting on the behalf of a partnership, I will be called as an agent and you will be called as a principal. और मेरी हर एक एक्टिविटी के लिए जितना मैं जिम्मेदार रहूंगा उतना आप भी जिम्मेदार होंगे. In some other act, when you are acting and I am not working, कुछ काम आप कर रहे हो जो मैं इंटरफियर नहीं कर रहा हूं, तो उस केस में यू विल बी लाइक एन एजेंट एंड आई विल बी लाइक अ प्रिंसिपल. एंड द सेम प्रिंसिपल विल बी अप्लाइड. जैसा आप काम करोगे तो आपकी एक्टिविटी के लिए आप भी जिम्मेदार होंगे और वो एक्टिविटी के लिए मैं भी इक्वली आपके साथ जिम्मेदार रहूंगा. तो दिस इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, म्यूचुअल एजेंसी. दैट मीन्स partner are the agent as well as they are the principal in a partnership firm. They will bind the partners, they will bind the partnership firm by their act. Bind the partnership firm by their act का मीनिंग क्या है कि मेरी कोई भी एक्टिविटी जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है, उस हर एक एक्टिविटी के लिए, उस हर एक काम के लिए सभी पार्टनर्स इक्वली जिम्मेदार रहेंगे. यानी अगर पार्टनरशिप के एक्टिविटी करते करते अगर मेरे हाथ से कुछ लॉस हो जाता है तो उस लॉस के लिए पूरा फर्म रिस्पॉन्सिबल रहेगा. अगर मैंने किसी थर्ड पार्टी से, कस्टमर से ऑर्डर लिया और उससे मैंने अगर एडवांस लिया है और वो एडवांस मैंने कैश में लिया है और अगर रास्ते में वो कैश चोरी हो जाता है तो वो पर्टिकुलर लॉस के लिए मेरे साथ साथ बाकी के पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. तो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. ट्राई टू रिमेंबर दैट. व्हाट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप के वहां पे कम से कम 2 लोग चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. उनके बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट चाहिए. किस चीज का एग्रीमेंट चाहिए? तो बिजनेस करने का एग्रीमेंट चाहिए. बिजनेस आप क्यों कर रहे हो? ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न द प्रॉफिट. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव चाहिए. चैरिटेबल काम नहीं कर रहे हो, दो यू आर डूइंग अ बिजनेस, बट अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग का नहीं है, प्रॉफिट अर्निंग का नहीं है, तो देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप. यहां पे आपका ऑब्जेक्टिव बिजनेस करने का होना चाहिए और बिजनेस किस पर्पस के लिए आप कर रहे हो? तो फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट. और लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज ऑफ म्यूचुअल एजेंसी. दैट मीन्स दिस बिजनेस विल बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. दैट मीन्स दैट वन पर्सन हु इज एक्टिंग फॉर ऑल, whatever act committed by that one person will bind the entire partnership firm. उसकी सभी एक्टिविटी के लिए जो पार्टनरशिप से कनेक्टेड है, वो सभी एक्टिविटी के लिए बाकी सभी पार्टनर्स जो है उसके जिम्मेदार रहेंगे. दैट मीन्स बाय वन एंड रिस्पॉन्सिबल एवरीवन. तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. वन बाय वन विल सी ऑल दिस एलिमेंट्स. That is a feature. What it says? What are the essential elements
These definition contain 5 important elements which constitute a partnership. अगर इस एलिमेंट में से एक भी एलिमेंट अगर मिसिंग है तो उस इंस्टीट्यूशन को यू कैन नॉट कॉल इट एज अ पार्टनरशिप। तो अगर कोई डिस्प्यूट होता है और कोर्ट में अगर ये डिस्प्यूट जाता है तो कोर्ट जज सबसे पहले ये देखेगा कि वो जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी वो ट्रांजैक्शन उस इंस्टीट्यूशन में हुआ है, उसमें ये 5 एलिमेंट जो यहाँ पे दिए हुए, जो फीचर्स दिए हुए, वो मौजूद है या नहीं है। अगर वो 5 फीचर्स उस ट्रांजैक्शन में मौजूद है, वो इंस्टीट्यूशन में मौजूद है, तो देन कोर्ट विल टेक अ व्यू दैट इट इज अ पार्टनरशिप and accordingly the provision of Partnership Act 1932 will be applied and court will take its own decision. तो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी जिस इंस्टीट्यूशन में हुई है, उस ट्रांजैक्शन के अंदर, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर ये 5 एलिमेंट अगर मौजूद है तो कोर्ट जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 को रिफर करेगा एंड अकॉर्डिंगली कोर्ट डिसीजन अपना देगा। कौन कौन से एलिमेंट, तो बोल रहा क्या है, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एग्रीमेंट से ही पार्टनरशिप बनेगा, अपने आप पार्टनरशिप नहीं बन जाएगा। जैसे कि मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे अंकल, मेरे आंटी एक पार्टनरशिप फॉर्म, नेम ऑफ दैट पार्टनरशिप फर्म एग्जाम्पल नोबल एंटरप्राइजेस। ये नोबल एंटरप्राइजेस में 4 पार्टनर्स है। उसमें पार्टनर्स कौन कौन है, माय मॉम, माय डैड, माय अंकल एंड माय आंटी। अब उस फैमिली में मेरा बर्थ हुआ तो क्या मैं ऑटोमेटिकली उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन जाऊंगा, तो आंसर इज नो। क्योंकि यहां पे क्या बोला है कि पार्टनरशिप विल ऑलवेज बी क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट देयर कैन नॉट बी अ पार्टनरशिप। तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है कि वेदर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अ पार्टनर और नॉट। तो कोर्ट सबसे पहले ये देखेगा कि वो पर्सन के साथ एज अ पार्टनर एग्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, तो वो बोल रहा है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यानी कम से कम कितने लोग चाहिए, पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए 2 लोग चाहिए, 2 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। थर्ड है किस चीज का एग्रीमेंट चाहिए, हु एग्री टू कैरी ऑन बिजनेस। एग्रीमेंट 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में किस पर्पस के लिए चाहिए, तो वो बोल रहा है बिजनेस करने का एग्रीमेंट चाहिए। बिजनेस क्यों करना है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए आपको बिजनेस करना है, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट। और लास्ट इंपॉर्टेंट इज द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल or any of them acting for all. That means that business, which business, the objective of which is to earn a profit, may be carried on by 1 partner, 2 partner और all of them। जितने पार्टनर्स है वो सभी पार्टनर्स काम करेंगे और एक दूसरे को अपने एक्ट के लिए बाउंड करेंगे, बाइंड करेंगे। That is called as a mutual agency. All the above element must coexist. Must coexist यानी एक दूसरे से जुड़े हुए चाहिए, इसमें चाहिए। अगर इसमें से एक भी एलिमेंट अगर मिसिंग है तो ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन पार्टनरशिप नहीं बोला जाएगा और कोई और इंस्टीट्यूशन रहेगा। और अगर उसमें डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट अकॉर्डिंगली वो इंस्टीट्यूशन को जो एक्ट अप्लाई होता है वो एक्ट को रिफर करेंगे, अकॉर्डिंगली कोर्ट विल गिव द जजमेंट। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट
a partnership, all the above element must coexist in order to constitute a partnership. यानी ये सभी 5 एलिमेंट मौजूद चाहिए पार्टनरशिप बनाने के लिए. If any of these is not present, there cannot be a partnership. We now discuss this element one by one. तो सबसे पहला एलिमेंट क्या दिया गया है कि वहां पे होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी था, कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी था, पार्टनरशिप एक्ट में भी वही बोल रहा है कि अगर 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग अगर बिजनेस करना चाहते तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए. दैट एग्रीमेंट में बी आइदर ओरल और मे बी इन राइटिंग. जनरली पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर इन राइटिंग, बट इवन if it is an oral contract between those persons, between those partners, and all the other elements are also present, then that particular entire form will be called as a partnership form. What it says? Partnership is the result of a contract. It does not arise from status, operation of law or inheritance. पार्टनरशिप कभी भी इनहेरिटेंस से नहीं बनेगी, ऑपरेशन ऑफ लॉ से नहीं बनेगी, ना ही स्टेटस से बनेगी. पार्टनरशिप कभी भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट से बनेगी. अगर हम 3 लोग बिजनेस कर रहे हैं और आपको हमारे साथ उस बिजनेस में ज्वाइन होना है, तो हम आपके साथ एक एग्रीमेंट बनाएंगे. दैट इज एन एग्रीमेंट फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर. Even if you are my son, by inheritance, मेरे डेथ के बाद ऑटोमेटिकली आप उस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बनेंगे. Unless and until मेरे डेथ के बाद बाकी 2 पार्टनर्स आपके साथ एग्रीमेंट करके आपको एडमिट नहीं करते, जब तक यू विल नॉट बी कॉल्ड एज अ पार्टनर. तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट. It will never arise by status. Status सिंबल नहीं है. यहाँ पे मैं हूं तो मेरा सन भी वही रहेगा, ऐसी बात नहीं है. ये पार्टनरशिप की बात हो रही है. पार्टनरशिप में जो भी एडमिट होगा वो पर्टिकुलर पर्सन विल बी बाय कॉन्ट्रैक्ट, जिसको सप्लीमेंट्री डीड आप बोलते हो, जिसको आप अल्टरेशन करते हो, न्यू डीड बनाते हो. सप्लीमेंट्री डीड के थ्रू आप न्यू पार्टनर को एडमिट करते हो. तो यहाँ पे एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है. ना ही पार्टनरशिप इनहेरिटेंस से बनेगा, ना ही पार्टनरशिप बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ से बनेगा. यानी लॉ किसी को भी ऐसा नहीं बोल सकता है कि इसका डेथ हो गया अब आपको इसको पार्टनर लेना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल उस पार्टनरशिप डीड में अगर ऐसा क्लॉज दिया गया है कि मेरे डेथ के बाद मेरा सन विल बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, एंड ओनली देन दैट न्यू पर्सन माय सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज दैट शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट इज द very foundation of partnership. It may however be either expressed or implied. Again, it may be oral or in writing. Thus, at the death of father who was a partner in a firm, the son can claim share in partnership property but cannot become a partner unless he enters into a contract for the same with other person concerned. Similarly, the member of joint Hindu family carrying on family business cannot be called as a partner, for the relation arises not from any contract but from status. Very, very important. There is every possibility that there may be an Hindu undivided family. What is a Hindu undivided family? As per Indian income tax, there is a separate status allotted to a Hindu family. That Hindu family is called as a Hindu undivided family. We generally call it as a HUF, Hindu undivided family. Hindu undivided family, as a name implies, it is a Hindu family which is a joint family where
there is one person who look after the entire family. That one person is called as a karta, and that Hindu family is also allowed to carry on the business in the name of Hindu undivided family. That Hindu undivided family is generally named with the name of the karta, and under the Indian income tax, Hindu undivided family has been given a separate status. That means that Hindu undivided family is allowed to carry on the business. That business may be again for the purpose of earning a profit. In a Hindu undivided family also there are minimum 2 person, maximum 2 से ज़्यादा हो सकते हैं. वहां पे भी 2 लोग हैं, 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं. वहां पे भी बिजनेस है. बिजनेस कैन बी फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट. उस बिजनेस के टेक केयर जनरली कर्ता करता है. कर्ता पूरी एक्टिविटी करेगा और वो बिजनेस का टेक केयर करेगा. लेकिन क्या उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को आप पार्टनरशिप बोलेंगे? तो आंसर इज नो, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज क्रिएटेड बाय स्टेटस. इसका मीनिंग क्या कि मेरे फादर का एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जिसका नाम है सुनील पाटिल HUF. वाई सुनील पाटिल HUF? बिकॉज द कर्ता ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली इज सुनील पाटिल. सुनील पाटिल की वाइफ और सुनील पाटिल की 2 सन और एक डॉटर, ऐसे 5 लोग मिला के उनका एक HUF है. अब उस फैमिली में मेरा बर्थ होता है, तो क्या मैं उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बाय बर्थ मेंबर बन जाऊंगा, यानी उस फैमिली बिजनेस का पार्ट बन जाऊंगा? तो आंसर इज यस. लेकिन मैं तो अभी जस्ट बॉर्न हुआ हूं, मैं तो माइनर हूं. क्या मैं उस फैमिली मेंबर का मेंबर बोल सकता हूं, मेंबर बोला जा सकता हूं? तो आंसर इज यस, because Hindu undivided family is created by status. यानी अगर उस फैमिली में मेरा बर्थ हुआ है तो by status I will be called as a co-partner and I will be a member of that Hindu undivided family. तो Hindu undivided family is created by status, whereas partnership is not created by status. तो there is a distinction between Hindu undivided family and partnership. डिटेल में रिफर करेंगे बाद में. तो HUF is created by status, whereas partnership is created by agreement. हालांकि जो दूसरे एलिमेंट पार्टनरशिप के वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी अप्लाई हो सकते हैं. जैसे कि 2 लोग हैं, 2 लोग बिजनेस कर रहे हैं, या 2 से ज्यादा लोग हैं वो बिजनेस कर रहे हैं. बिजनेस का पर्पज इज टू टेक केयर ऑफ to earn the profit, and that business is carried on by one person, that is a karta. लेकिन डिफरेंस क्या है कि वो स्टेटस से क्रिएट होता है और ये एग्रीमेंट से क्रिएट होता है पार्टनरशिप. और एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि कर्ता इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज. यहां पे सभी पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. वहां पे को-पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, कर्ता की लायबिलिटीज अनलिमिटेड. यहां पे सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, अनलेस एंड अनटिल इट इज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. दैट एक्ट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट. तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन HUF एंड पार्टनरशिप. HUF इज क्रिएटेड बाय स्टेटस, whereas partnership is always created by a contract, that is an agreement. What it further says, to emphasize the element of contract, section 5 expressly provide that the relation of partnership arises from the contract and not by the status. Partnership हमेशा agreement के थ्रू क्रिएट होगा, लेकिन status के थ्रू क्रिएट नहीं होगा. If my father is a partner in a noble enterprises, after his death, I will not become a partner in that partnership firm. That is not by inheritance. Though I will be entitled to receive
मेरे पापा का जो भी उस पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी प्रॉफिट शेयर रहेगा, एसेट में शेयर रहेगा, उसका मैं हकदार हूं, लेकिन क्या मैं उस पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर बन जाऊंगा? तो नहीं। पार्टनर कब बन सकता हूं? अगर बाकी पार्टनर मुझे विद एग्रीमेंट एडमिट करते हैं तो, अदरवाइज आई विल नॉट बिकम अ पार्टनर इन दैट पार्टनरशिप फॉर्म। सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर देन 2 पर्सन। कम से कम 2 लोग चाहिए। एक अकेला बंदा पार्टनरशिप नहीं बना सकता है, तो कम से कम कितने चाहिए? 2 से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? Since partnership is a result of a contract, at least 2 persons are necessary to constitute a partnership. The Partnership Act does not mention anything about the maximum number of persons who can be a partner in partnership form. Very, very important. Partnership Act will never define the limitation of number of partners. पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि पार्टनरशिप फॉर्म में कितने पार्टनर्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने पार्टनर्स चाहिए, ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा गया है। कॉन्ट्ररी ये कंपनीज एक्ट में लिखा गया है कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। रिमेंबर, दो इट इज कॉन्ट्रोवर्शियल, बट एक्ट इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। Partnership Act doesn't define the limitation of number of partners. However, Companies Act says that. तो कहाँ लिखा गया है कि पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? तो कंपनी एक्ट में लिखा गया है, जो आप लोग पढ़ने वाले हो। तो कंपनी एक्ट में पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स चाहिए ये लिखा गया है, अनलाइक पार्टनरशिप एक्ट में। तो व्हाट इट सेज? The Partnership Act does not mention about the maximum number of partners who can be a partner in the partnership firm, but Section 464 of the Companies Act 2013. Try to remember. Companies Act, Section 464, year 2013. Section 464, Companies Act 2013. has now put a limit of 50 partner in any association or partnership firm. यानी पार्टनरशिप फर्म में कितने मैक्सिमम पार्टनर्स होना चाहिए? कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50। और ये कहाँ पे लिखा गया है? तो सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट अंडर दिस इज only person competent to contract can enter into a contract of partnership. Section 10 of the Indian Contract Act में बोला गया है competency of the parties. कौन पार्टनर्स हो सकते हैं? वो मेजर होना चाहिए, अनसॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना चाहता है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो अक्लमंद चाहिए, यानी वो इंसेन नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का बंदा नहीं चाहिए, और वो मेजर होना चाहिए, उसकी एज 18 इयर्स के ऊपर होना चाहिए या कम से कम 18 साल का चाहिए, और उसको डिस्क्वालीफाई कोर्ट ने नहीं किया चाहिए। पर्सन में बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। यू एंड मी आर नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन यानी कंपनी। Company has a separate legal entity and it is defined as an artificial person. That means company can become a partner in a partnership firm. मैं और एक कंपनी दोनों मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। ये X लिमिटेड एंड Y लिमिटेड कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म, लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म दूसरे पार्टनरशिप फर्म के साथ या एक पार्टनरशिप फर्म किसी इंडिविजुअल के साथ पार्टनरशिप फर्म में एंटर नहीं हो सकती है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी।
Though the company is a separate legal entity, whereas a partnership firm is not a separate legal entity. Hence, if it has been said that partnership firm, and why partnership firm has formed a new partnership firm that is called as a Z partnership firm, तो यहाँ पे it will be read as, you are getting my point. अगर X पार्टनरशिप फर्म जहां पे 3 पार्टनर है A, B और C, X पार्टनरशिप फर्म ने Y पार्टनरशिप फर्म के साथ जिसके पार्टनर है D, E, F, X पार्टनरशिप फर्म ने Y पार्टनरशिप फर्म के साथ एक नया पार्टनरशिप फर्म बनाया Z पार्टनरशिप फर्म, तो क्या ये पार्टनरशिप फर्म में नवा पार्टनरशिप फर्म बनाया? तो आंसर इज नो. It will be read as, it will be understood as के X पार्टनरशिप फर्म के 3 पार्टनर A, B, C ने D, E, F जो Y पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स है, उन 6 लोगों ने मिलकर नया पार्टनरशिप फर्म बनाया Z पार्टनरशिप फर्म. तो यहां पे क्या बोला है कि किन लोगों में पार्टनरशिप हो सकती है? तो वो पर्सन कैन बी नेचुरल, कैन बी आर्टिफिशियल. A company may be being an artificial legal person can enter into contract of partnership if authorized by memorandum of association to do so. Even there could be a partnership between the number of companies. A partnership firm, since it is not recognized as legal person, having a separate entity from that of partner, cannot enter into contract of partnership with another firm or individual. When firm enters into a contract, firm in the sense partnership firm, enter into a contract of partnership with another firm or individual, in that case, in the eye of law, the member of the firm or firms become a partner in their individual capacity. यानी यहाँ पे क्या बोला है कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म किसी और के साथ पार्टनरशिप फर्म बनाता है, न्यू पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनरशिप बनाई वैसा नहीं समझा जाएगा, उसको समझा जाएगा पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स ने न्यू पर्सन के साथ पार्टनरशिप बनाई है. थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज बिजनेस. आई टोल्ड यू दैट what is very important element of partnership is there should be a business. Objective of business is to make a profit. Business क्या होता है? लेन देन. आप कोई माल लेते हो और किसी और को बेच के उस पर पैसा कमाते हो. कोई माल को मैन्युफैक्चर करते हो and you sell it and you make a profit. So that is called as a business. What is not a business? If my father has a huge property, my father has given that particular property on a rent to a bank institution. The rent of that particular bank is rupees 1 lakh per month. मेरे father के death के बाद that particular property got devolved on their son. 2 sons के ऊपर वो property pass हुई, X और Y. Now that 1 lakh rupees का जो रेंट आ रहा है वो X and Y इक्वली शेयर कर रहे हैं. तो क्या इसे बिजनेस बोला जाएगा? इसे बिजनेस नहीं बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा को ओनरशिप. तो यहाँ पे पार्टनरशिप में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? तो वो बोल रहा है कि वहां पे बिजनेस होना चाहिए. इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी विल कंसिडर 2 प्रपोजिशंस. फर्स्ट, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ बिजनेस. The term business is used in its widest sense include every trade, occupation और profession. सभी चीज आ गई. उसमें प्रोफेशन भी आ गया, उसमें बिजनेस ट्रेड भी आ गया. The existence of business is essential, important. Secondly, the motive of the business is the acquisition of gain. उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या चाहिए? कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाने का चाहिए, चैरिटी का नहीं चाहिए. जैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर होता है. एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि कुछ लोग मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं. उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है
कि बल्क में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल करने का, ताकि मिडलमैन उनको एक्सप्लॉइट ना करे, और उसी तरह बल्क में पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर परचेस करने का टू एंजॉय द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसका मीनिंग क्या है कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर उनको अगर लमसम में ऑर्डर कर रहे हैं, सभी फार्मर्स मिलके ऑर्डर कर रहे हैं, तो मिनिमम प्राइस में मिलेगा। तो यहाँ पे भी कुछ लोगों ने मिलके एक इंस्टीट्यूशन बनाया है जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला जाता है। तो वहां पे भी क्या वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस कर रहे हैं, तो दे मे कैरी ऑन बिजनेस, दे मे नॉट कैरी ऑन बिजनेस, बट देयर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक अ प्रॉफिट। Their objective is to provide a maximum benefit to their members by way of economies of scale, by way of avoiding a competition, by way of avoiding an exploitation. तो ये उनका ऑब्जेक्टिव है। तो क्या वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को पार्टनरशिप बोला जाएगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वहां पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं है। Equation of gain which leads to the formation of partnership. Therefore, there can be no partnership where there is no intention to carry on the business and to share the profit. In other words, if the purpose is to carry on some charitable work, it will not be a partnership. It will not be called as a partnership. Next is sharing of profit. Just now I told you that कि profit sharing objective होना चाहिए। Always the person who are entering into a partnership agreement will always write down in that particular partnership कि profit share होगा। If ratio नहीं दिया हुआ है तो equal होगा, ratio दिया हुआ है तो वो ratio में share होगा। There cannot be like कि एक particular person 100% profit रखेगा और दूसरे person को अगर प्रॉफिट हुआ तो शेयर सैलरी के फॉर्म में देगा। तो यहां पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं बोला जाएगा। यहां पे जो भी पार्टनर्स बिजनेस कर रहे उन लोगों के बीच में प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। लॉस शेयरिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। द एंटायर लॉस ऑफ द पार्टनरशिप कैन बी borne by one partner. It can be written in an agreement that if there is a loss, that loss will be borne by an active partner. However, if there is a profit, that profit will be shared by number of partners, active, even the dormant. However, if there is a loss, it can be said that कि loss एक पार्टनर पूरा का पूरा अपने सर पे ले सकता है, लेकिन प्रॉफिट अगर एक पार्टनर पूरा का पूरा अपने कंटेनर में ले रहा है, so then it cannot be called as a partnership. So there has to be a sharing of profit. What it says? This essential element provide that agreement to carry on the business must be with the objective of sharing the profit among all the partners. Impliedly, the partnership must aim to make profit because then only profit may be divided amongst the partners. तो objective profit earning का चाहिए और एट द सेम टाइम उस प्रॉफिट को जो आपने कमाया है वो पार्टनर्स में शेयर होना चाहिए। द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज दस एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर ओनली वन पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू द होल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अगर एक पर्सन पूरा का प्रॉफिट अपने बैग में ले लेता है तो देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप। The partners may however agree to share the profit in any ratio they like. Ratio कोई भी हो सकता है। Sharing of losses not necessary. Loss मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप कभी भी नेगेटिव माइंड से एग्रीमेंट नहीं बनाते हो, आप कभी भी पॉजिटिव माइंड से, आप कभी नहीं बोलोगे चलो अपन दोनों बिजनेस करते हो लॉस शेयर करेंगे। Do we prepare this agreement? Do we make such kind of an agreement where we say that come on, we are going to carry on the business of ice cream and we will enjoy the losses? What we'll say, we will enjoy the profit. So we are always going to prepare an agreement with the objective of making a profit. We are never going to prepare a partnership with the objective of making a losses. तो यहाँ पे क्या बोला है कि प्रॉफिट कमाने का आपका ऑब्जेक्टिव चाहिए और उस प्रॉफिट को सभी पार्टनर में शेयर करने का भी ऑब्जेक्टिव चाहिए।
लेकिन अगर इंसिडेंटली, जरूरी तो नहीं है कि प्रॉफिट होगा, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि लॉस भी हो सकता है। अगर कुछ अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस आ गए, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज आ गई, तो उस केस में देयर इज पॉसिबिलिटी दैट देयर मे बी लॉस। तो लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है, दैट एंटायर लॉस कैन बी बोर्न बाय 1 or 2 पार्टनर अमंग 10 पार्टनर्स, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है। To constitute a partnership, it is not essential that the partners should agree to share the losses. It is open to one or more partners to agree to bear all the losses. The Act therefore does not seek to make agreement to share losses as a test of existing of partnership. Section 13B, however, provides that the partners are entitled to share equally in the profit earned and shall contribute equally to the losses sustained by the firm unless otherwise agreed. यानी अगर कोई रेशियो दिया हुआ नहीं है तो जनरली वी गो फॉर इक्वल रेशियो, प्रॉफिट का भी और लॉस का भी। However, this can be differ by way of an agreement. If there are 3 partners, it can be like that. All the partner will share a profit in the ratio of 1:1:1, whereas losses will be shared in the ratio of 1:1 between A and B. यानी प्रॉफिट 3 लोग में शेयर होगा, लेकिन लॉसेस A और B में ही शेयर होगा, या सिर्फ लॉस पूरा का पूरा A बेयर करेगा। तो ये एग्रीमेंट सही एग्रीमेंट है, इसमें कोई गलती नहीं है, एंड इट कैन बी कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज अ म्यूचुअल एजेंसी, जहां पे मैंने बोला कि दैट बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप में बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कार्डिनल प्रिंसिपल है, म्यूचुअल एजेंसी इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। उसका मीनिंग यह है कि अगर सभी पार्टनर्स काम नहीं करते, कुछ पार्टनर्स काम करते, कुछ नहीं करते, तो क्या जो कुछ नहीं कर रहे वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो कर रहा है उन पे डाल देंगे और बोलेंगे कि हमें कुछ लेना देना नहीं है, आप देखो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, हर एक पार्टनर एजेंट भी है और प्रिंसिपल है। अगर वो काम कर रहा है तो वो एजेंट है, बाकी लोग प्रिंसिपल है, और कुछ एक्टिविटी दूसरे लोग कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, तो उस सर्कमस्टेंसेस में वो एजेंट है और आप प्रिंसिपल है। लॉ ऑफ एजेंसी का यहाँ पे रूल अप्लाई होगा कि एक्ट ऑफ ए एजेंट के लिए प्रिंसिपल इज लायबल। इन द सेम मैनर एक्ट ऑफ एक पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी पार्टनर्स पे आएंगी, बराबर। इंटरनली दे विल रेप्रीमैंड ईच अदर, यानी एक दूसरे को चिल्ला सकते हो, बोल सकते कि आपके वजह से नुकसान हो गया, आप भर के देंगे, मगर बाहर वाला का ये कोई लेना देना नहीं है। बाहर वाला तो पूरा पार्टनरशिप फॉर्म पे सूट फाइल करेगा अगर उसका नुकसान होता है, और वो उसका लॉस पूरी पार्टनरशिप फॉर्म से वसूल करेगा। आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप निपटो, आप आपका कोर्ट में जाओ एंड आप निपटते बैठो, हम तो हमारे घर जा रहे हैं। यहाँ पे अगर एक पार्टनर के नेग्लिजेंस से अगर तीसरे आउटसाइडर का कोई लॉस होता है तो उस लॉस को पूरी की पूरी पार्टनरशिप फॉर्म विल बेयर। जैसे प्रॉफिट अगर उसके एक्टिविटी से अगर प्रॉफिट होता है, अगर एक पार्टनर के कुछ काम करने से, कुछ दिमाग लगाने से अगर प्रॉफिट होता है, तो जिस तरीके से बाकी सभी पार्टनर्स उस प्रॉफिट को शेयर करते हैं, तो वही कंडीशन लॉस के लिए भी है कि अगर उसके नेग्लिजेंस से कोई नुकसान हो जाता है तो वो नुकसान भी बाकी सभी पार्टनर को शेयर करना पड़ेगा। यू कैन नॉट से दैट कि वी विल ओनली शेयर द प्रॉफिट, नुकसान होता है आप अकेला निपटो। अगर वहां पे लॉसेस का रेशियो दैट इज अ डिफरेंट मैटर, लेकिन आप थर्ड पार्टी के रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। The fifth element in the definition of partnership provides that the business must be carried on by all the partner or any one of them acting for all. There must be a mutual agency. Thus, every partner is both an agent and principal for himself and other partner. That is, he can bind by his act. This sentence is very important. He can bind by his act the other partner and can be bound by the act of other partner in the ordinary course of business. That means, वो जो भी काम करेगा उस काम के लिए वो भी जिम्मेदार है, सभी पार्टनर जिम्मेदार है, और
कोई दूसरा काम कोई और पार्टनर करता है तो वो एक्टिविटी के लिए उसके साथ साथ आप भी जिम्मेदार हैं. That means you are the principal as well as agent. He is an agent in so far as he can bind the other partner by his act, and he is principal to the extent that he is bound by the act of other partners. That means वो काम कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएंगी, आप काम कर रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे आएंगी, आप पे तो आएंगी उस पे भी आएंगी. The importance of the element of mutual agency lies in the fact that it enables every partner to carry on the business on the behalf of others. Partner may agree among themselves that some of them shall not enter into any contract on the behalf of the firm, but by virtue of the principle of mutual agency, such partner can bind the firm vis-a-vis, that is against a third party, without notice, in contract made accordingly to the ordinary usage of trade. Of course, he can be made liable by other partner inter se, yani between themselves, for exceeding his authority. Means what? Okay, there is every possibility that there are 4 partners A, B, C, D. उसमें A को बोला गया है कि आप परचेज के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, दे आर पार्टनर्स. लेकिन A को क्या बोला गया है कि आप परचेस का कोई भी ऑर्डर नहीं दोगे. आप परचेस अगर करना है तो दैट परचेस का टेक केयर बी, सी और डी देखेंगे. ए को ये अथॉरिटी नहीं दी गई, लेकिन ए ने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करके कुछ गुड्स क्रेडिट पे परचेस कर लिया, तो क्या थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी, जो थर्ड सपोज 1 लाख रुपए का माल ए ने परचेस कर लिया जबकि उसको अथॉरिटी नहीं थी, ये एग्रीमेंट बिटवीन देमसेल्फ था. इस एग्रीमेंट के बारे में थर्ड पार्टी सप्लायर को पता नहीं था. सप्लायर को ये कोई लेना देना नहीं है कि किसको अथॉरिटी है किसको अथॉरिटी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपने उस सप्लायर को इन्फॉर्म किया है कि ए को ये राइट्स नहीं है फॉर परचेजिंग. आपने आप लोगों के बीच में ये एग्रीमेंट बना लिया और ए ने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करके सप्लायर से माल ले लिया, तो क्या पैसा देने की जिम्मेदारी पूरे पार्टनरशिप फॉर्म पे है या नहीं है? तो आंसर इज है, क्योंकि यहाँ पे एक्ट ऑफ एनी पार्टनर विल बाइंड द एंटायर पार्टनरशिप फॉर्म. इवन दो ही हैज एक्सीडेड हिज अथॉरिटी, इट विल बाइंड द फॉर्म. ए को माल नहीं लेना चाहिए था, ले लिया, माल 1 लाख रुपए का है. बी, सी, डी ये नहीं बोल सकते कि आप निपटो और वो थर्ड पार्टी निपटेगा, हमको कोई लेना देना नहीं है. वो थर्ड पार्टी तो पूरे फर्म से पैसा वसूल करेगा और फर्म को देना भी पड़ेगा. ये बात अलग है कि बी, सी और डी जो भी नुकसान होगा वो इंटरनली ए से रिकवर करते रहेंगे, लेकिन दे कैन नॉट से दैट कि जब ए से पैसा आएगा हम आपको देंगे यानी सप्लायर को देंगे, उन्हें तो उसे इमीडिएटली पैसा देना पड़ेगा. तो दिस इज व्हाट इज अ म्यूचुअल एजेंसी. इट मे बी नोटेड दैट द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल एजेंसी रादर देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. If the element of mutual agency is absent, there will be a most important element is a mutual agency. Sharing of profit तो no doubt it is important, लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप में क्या है? तो म्यूचुअल एजेंसी. दैट मीन्स इट मे बी कैरिड ऑन बाय वन, बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो दिस इज अ रूल ऑफ partnership. Then there is a true test of partnership. True test of partnership में वही चीज दी हुई है यहाँ पे. जस्ट यू गो थ्रू इट. क्या दिया हुआ है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, जो अभी अपन ने देखा कि पार्टनरशिप है या नहीं, ये कोर्ट कैसा डिसाइड करेगा? तो वो बोल रहा है पार्टनरशिप देखेगा कि उनके बीच में एग्रीमेंट है या नहीं. ओरल है तो एविडेंस मंगाएगा और देखेगा कि आप प्रूफ करो कि है क्या नहीं. लेकिन जनरली पार्टनरशिप इज बाय वे ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट. तो कोर्ट विल कॉल फॉर दैट रिटर्न एग्रीमेंट विच इज जनरली कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप डीड. वो पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट. तो पार्टनरशिप विल बी क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज कि वहां पे एग्रीमेंट चाहिए. अपने आप
नफा हो गया और आपने शेयर कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा क्या है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को देखेगा कि पार्टनर्स के बीच में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है या नहीं। ये जरूरी नहीं है कि अगर एक में प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट में से कुछ भाग आपको दे रहा हो, शेयर दे रहा हो, तो यू हैव बिकम अ पार्टनर, जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कोई सेल्समैन आपके पास काम करता है और आप उसके ऊपर कंडीशन रखते हो कि आई विल गिव यू अ फिक्स सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज पर मंथ, एंड अगर पार्टनरशिप फर्म को 10 लाख रुपीज के ऊपर अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको 1% ऑफ एक्सेस प्रॉफिट भी दूंगा। तो यहाँ पे एक्सेस प्रॉफिट की भी शेयरिंग हो रही है वो सेल्समैन के साथ। तो क्या वो सेल्समैन आपका पार्टनर हो गया? तो आंसर इज नो। अगर आपने किसी कोई विडो है जो कोई फॉर एग्जांपल इफ एक्स वाज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, एक्स की डेथ हो गई और आप उसके विडो को पर मंथ कोई स्पेसिफिक अमाउंट दे रहे हो, तो क्या वो विडो आपके पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो गई? नहीं, ही विल नॉट बी कॉल्ड एज अ पार्टनर। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विद समवन विल बी कॉल्ड एज अ पार्टनर। कोर्ट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के साथ साथ दूसरे एलिमेंट भी देखेगा एंड देन कोर्ट डिसाइड करेगा कि वेदर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अ पार्टनर और नॉट। आप सेल्समैन को प्रॉफिट का शेयर देते हो, सेल्समैन को सैलरी देते हो, एम्प्लॉय को सैलरी देते हो, किसी से आपने कॉन्टिजेंसी पे आप प्रॉफिट को शेयर करते हो, तो क्या ये जितने भी लोग जिसके साथ आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, तो क्या वो पार्टनर्स माने जाएंगे? मैनेजर को आप सैलरी पे करते हो, सैलरी इज ऑल्सो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से ही सैलरी आप देते हो, तो क्या ये सब लोग पार्टनर माने जाएंगे? तो आंसर इज नो। एंड लास्ट वन इज व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट? देयर शुड बी एन एजेंसी। तो यहाँ पे क्या बोला है, टू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में क्या देखेंगे? एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, और लास्ट वन म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी क्या है? एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल ऑफ देम may be working, or any of them may work for other partners, and all of them will be equally liable for any act done by the partner, where every partner will act as a principal as well as agent. This is a cardinal principle of partnership. Mutual agency is a important principle, cardinal principle of partnership. तो ये सब चीजें पार्टनरशिप में होनी चाहिए। अगर वो इंस्टीट्यूशन में, कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में ये 5 फीचर्स अवेलेबल है, so then that institution will be called as a partnership firm. Once again, we'll revise what are the important features. There should be an association of 2 or more than 2 persons. There should be an agreement between those 2 or more than 2 persons. The agreement should be for the purpose of carrying on business. Business should be for the purpose of earning a profit and sharing a profit. And last one, there should be a agreement of mutual, that means there should be a mutual agency. That means that business can be carried on by all or any one of them acting for all. So these are the important features of partnership. Hope you have understood the concept. If any doubt, please ask me. Bye everyone.